नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। ईसीएल के क्वार्टी 3 नंबर कोलियरी क्षेत्र में भारी भूस्खलन से इलाके के लोग आतंकित हैं। इनका कहना है कि आज सुबह जब 2 युवक खेत जा रहे थे तो वो तेज़ आवाज़ सुनकर इलाके में गए तो उन्होंने देखा कि बड़े क्षेत्र में भूधसान की घटना घटी है। स्थानीय निवासियों ने ईसीएल अधिकारियों से इस मसले पर तवज्जो देने की मांग की, लेकिन ईसीएल अधिकारियों ने कहा कि भूधसान ईसीएल के कारण नहीं हुआ था, बल्कि पहले की निजी कंपनियों के कारण हुआ है। দুটো ছেলে মুখ ধুয়ে আসলে পুকুর ধার থেকে তা করতে আওয়াজ হলো, তো সে কী আওয়াজ হলো তো ডাবার দিকে তাকাচ্ছে, মনে হচ্ছে কোনো আওয়াজ হলো, তো তা করতে এবার নিচে তাকাই দেখছে না মাটিটা একদম হেঁটে ঘুষকে গেছে। ভয় লাগছে এটা নিয়ে? খুব আওয়াজ করছে তো ভয় লাগছে। এখন কে কে এসছে এখানে? এখন কেউ আসেনি। আপনার নাম? আমার নাম দর্শন। আমাদের ওখানে 6টার সময় হয়ে গেছে, বসে গেছে, তো আমরা কোথায় থাকবো, আমাদের কিছু নেই, ব্যবস্থা করো। এটা নিয়ে কি ভয় লাগছে? হ্যাঁ ভয় পাচ্ছে, ছোট ছোট বাচ্চা আছে আর আছে, আমরা কোথায় যাবো, আমরা গরিব মানুষ। কি নাম আপনার? ববিতা বাউরি। আমাদের এখানে 3 নম্বর কোয়ার্টি কলিয়ারি। আমাদের এখানে সকাল দুজন মুখ ধুতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখে একটা শব্দ হতে উপর দিকে তাকাচ্ছে, তাকানোর পর দেখা যাচ্ছে যে নিচে একটা ধস নেমে গেছে। ধস নামতে নামতে এতটা গর্ত হয়ে পড়লো যে আমাদের এখানকার মানুষজন গিয়ে দেখে যে অনেক শব্দ হচ্ছে আর জল মানে অনেক গর্ত হয়ে গেছে, আর জল প্রচণ্ড একটা শব্দ হচ্ছে, আওয়াজ হচ্ছে। তারপরে মানুষজন ভয়ে, আমরা তো সব এখন থেকেই বলছি জিনিসপত্র বাগাবো নাকি, কী হবে কি বোঝা মুশকিল। এখন আমাদের এই বাচ্চারা চলে যাচ্ছে, গরু ছাগল চলে যাচ্ছে, তার জন্য আমরা পুলিশকেও দেখেছি, আমাদের এখানে নেতারা এসেছিল, দেখে গেছি। এবার আমাদের একটু ব্যবস্থা না করলে, এই তো 5 তারিখে ফুটবল খেলা গেল, এই 5 তারিখে এখানে একটা ওয়ানডে খেলা, সেদিন যদি হঠাৎ করে এটা হতো তাহলে কি বড় বিপদ হতো বলো। এটা আবার কালকেও বাচ্চারা খেলেছে, এটা ফুটবল মাঠ, এটা আমাদের ঠিক প্রত্যেক দিন খেলা হয়, ওয়ানডে খেলা হয়, ছেলেরা এখানে ম্যাচেও ডাকে। এটা যদি বাইরের ছেলেদেরও ক্ষতি হতো, এই কারণে কোনো একটা ব্যবস্থা করলে ভালো হয়, জোরাত করে বলছি। আমার নাম ঝর্ণা মাউরি, আমি কিন্তু মহিলা মোর্চারের একটা সেক্রেটারি। 3 নম্বরে একটা সাবসাইড হয়েছে, তো সাবসাইডটা যখন এলো তখন মানুষজন এখানে সতর্ক হলো, আর সব জায়গায় খবর দেওয়া হলো, পুলিশকেও খবর দেওয়া হলো, এখানে কোলের ম্যানেজমেন্টকেও খবর দেওয়া হলো। পুলিশ অলরেডি এসে গিয়েছে, ম্যানেজমেন্ট আসছে, কোলের পক্ষ থেকে যেটা সিকিউরিটি তারা এসেছিল, তারা এসে দেখে গিয়েছে। এখন ম্যানেজার, সার্ভেয়ার সবাই আসছে, দেখবে, তারপরে যেটা ব্যবস্থা নেবে। কী ধরনের দেখতে পাচ্ছেন আপনি, কেমন হয়েছে? এখন তো বোঝা যাচ্ছে না, গর্ত হয়েছে, কিন্তু ভিতর থেকে আওয়াজ হচ্ছে, জলের আওয়াজ হচ্ছে, তারপরে এমনি খুব মানে বাজে ধরনেরই আওয়াজ হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন হেভি কিছু হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ অবধি না ইসিএলের সার্ভেয়ার বা ম্যানেজার আসবে, তারা যতক্ষণ কিছু না দেখবে তারা বলতে পারবে না কাউ। আর আমরা কিছুই জানি না, এখানে যারা পুরনো লোক আছে তারা হয়তো কিছু বলতে পারবে। আপনার নাম? আমার নাম চন্দন মুখার্জি। কি হয়েছে? এগুলোর নিচে আমরা এখন যে আন্দাজ করছি, হয়তো ন্যাশনালাইজেশনের আগে এখানে অনেক মাইন্স চলতো, প্রাইভেট মাইন্স, তারা এখানে চালিয়েছে শ্যালো ডেপথে, উইদাউট কোনো গাইডলাইন্স, ডিজিএমএসের কিছু গাইডলাইন্স তারা চালিয়েছে। সেইগুলোর জন্য কি হচ্ছে, আমাদের অনেক জায়গাতে এরকম প্রবলেম হচ্ছে, তো সেগুলো যখন প্রবলেম হচ্ছে আমরা সেগুলোকে তখন সেভাবে স্টেপ নিচ্ছি সেগুলো। তো এটাকে আমরা এখন টেম্পোরারি ফেন্সিং করব, আর তারপরে এটাকে পুরো ফিলিং করব মেশিন দিয়ে। স্যার কি দেখলেন, কি ধরনের ভিতরে হচ্ছে আওয়াজ? ভেতরে কোনো ওয়ার্কিং আছে, হয়তো আগেকার চালানো, ন্যাশনালাইজেশন আগেকার চালানো কোনো ওয়ার্কিং আছে, সেই ওয়ার্কিং হয়তো শ্যালো ডেপথে কভারে চালানো হয়েছে,
সেইগুলো এখন জলের ইয়েতে হচ্ছে, সেগুলো মাটিগুলো ধসছে, আস্তে আস্তে টানছে, তার জন্য উপর থেকে সাবসাইড করছে। এটা কি বলছেন যে ইসিএল কয়লা কেটে গেছে? ইসিএল নয়, ইসিএল নয়, ইসিএল নয়, ইসিএল এর আগে যখন ন্যাশনালাইজেশনের আগে যখন প্রাইভেট মাইন্স চলতো তখনকার ঘটনা এগুলো। কত গর্ত আছে এখন দেখতে পাই? এখানে প্ল্যান দেখে বলতে হবে আমাকে, এখানে সিমের ডেপথ দেখে বলতে হবে, আন্দাজে বলার ঠিক নয়। এখন যে ধস হয়েছে ওইটা কত গর্ত, কি সাইজ কি আছে? ওখানে সামনে আমি কাউকে যেতেই দিচ্ছি না, এখন ধসটা হয়েছে, আমি এখন সামনে কাউকে যেতে দিচ্ছি না। যা হবে আমরা ওয়ার্কিং প্ল্যান দেখেই আপনার অ্যাকুরেট বলতে পারবো যে এখানে কত ডেপথ অফ কভার আছে। এলাকার মানুষের জন্য কিছু চিন্তা ভাবনা যারা আতঙ্কে রয়েছেন বা হ্যাঁ, এখন ফেন্সিং করবো, কভার করবো, আর একটা গার্ডিং করবো যাতে এখানে কেউ না যায় বা কিছু। আর যে সমস্ত কোয়ার্টারগুলো রয়েছে আশেপাশে, সেটা তো আরও ফিউচারে বোঝা যাবে, এখন আমাদেরকে পুরো জিনিসটা টেস্ট করতে হবে কতটা জোন হবে, সেই পরে বুঝবো, সেটা তেমন তেমন স্টেপ নেওয়া হবে। এখন টেম্পোরে আমাদেরকে এখানে সেভ করতে হবে যাতে এখন এইটার জন্য কোনো ফার্দার অ্যাক্সিডেন্ট কিছু না হয়ে যায়। सोमनाथ मुखोपाध्याय। दुर्गा पूजा के दौरान किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की एक टीम ने आसनसोल के विभिन्न मंडपों का दौरा किया। इस टीम का नेतृत्व डीसी ट्रैफिक आनंद राय, डीसी सेंट्रल डॉक्टर एसएस कुलदीप, कई एसीपी और साउथ थाने के पुलिस अधिकारियों ने की। इन अधिकारियों ने धेमोमिन कोलियरी, कोर्ट मोड़, अपकार गार्डन पूजा पंडालों का जायज़ा लिया। पिछले साल ट्रैफिक जाम की वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। इस साल इस तरह की कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा पहले से ही पूजा कमेटियों से बात की जा रही है। ক্রাউড সার্কুলেশন যাতে ঠিকঠাক হয়, কোনো প্রবলেম না হয়, ট্রাফিক কন্ডিশন না হয়, সেই জন্য পুজো কমিটি থেকে কী কী নির্দেশ দিলেন আপনারা? আমাদের এন্ডের থেকে যেটা যেটা মনে হলো ঠিকঠাক করতে হবে, যেটা যেটা করণীয় সেটা সেটা করলাম। তাও কী কী মানে দেখলেন যে যেরকম যেখানে ব্যারিকেড দিতে হবে, কোথায় এন্ট্রি কেমন হবে, এক্সিট কেমন হবে, কোন দিক দিয়ে ঢুকবে, কোন দিক দিয়ে বেরোবে, সেফটি সিকিউরিটি মেজার্স নিয়ে করলাম। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिल व्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिल व्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिल व्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिल व्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए 4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671777।
674। होमलैंड फर्नीचर। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। आज आसनसोल के उषाग्राम इलाके में स्थित एक निजी होटल में एसिडिटी को लेकर एक विशेष जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर रमन राज और शुभदीप बोस ने लोगों को एसिडिटी जैसी बीमारी की वजह और उसके समाधान के बारे में जागरूक किया। इस बारे में डॉक्टर रमन राज ने कहा कि अक्सर लोग इस बीमारी को नज़रअंदाज करते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी दवा खा लेते हैं। उन्होंने लोगों से इस तरह का काम करने से परहेज़ करने की सलाह दी। इनका साफ कहना है कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए कभी भी कोई दवा नहीं खानी चाहिए। ये एसिडिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग को क्या कॉमनली करना चाहिए एसिडिटी होने पे, इस पे एक जागरूकता अभियान के तहत ये वर्कशॉप किया गया है। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। डॉक्टर शुभदीप घोष ने बताया कि एसिडिटी कितना कॉमन है हमारे क्षेत्र में, इंडिया में, स्पेशली हमारे वेस्ट बंगाल में, खासकर आसनसोल क्षेत्र में, पश्चिम बर्धमान में कितना कॉमन एसिडिटी है, एसिडिटी क्यों हो रहा है। फिर मैंने बताया कि एसिडिटी का इलाज किस तरह से करना चाहिए। देखिए, बेसिकली तो मैंने बताया है जैसा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा, अपने फूड हैबिट को, खाने की आदत को रेगुलर करना होगा, बहुत ज़्यादा तेल घी वाली चीज़ें खाना बंद करना होगा, स्मोकिंग बंद करना होगा, अल्कोहल बंद करना होगा। जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर 1-2 दिन या 1 सप्ताह से कम से प्रॉब्लम है तो वो एंटासिड वगैरह लेकर के कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। और जिनको 2 हफ्ते से ज़्यादा से एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। कोई भी मेडिसिन जो एसिडिटी का होता है वो बिना डॉक्टर के परामर्श के ज़्यादा समय के लिए नहीं लेना चाहिए। और अगर एसिड लेना पड़े तो पहले सिंपल मेडिसिन से शुरू करना चाहिए, जैसे रेनिटिडीन या फेमोटिडीन। और अगर इससे भी ना हो तो डॉक्टर से परामर्श से आप फिर पीपीआई या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले सकते हैं। डॉक्टर रमन राज। অ্যাসিডিটি আর জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যাবাউট অ্যাসিডিটি সেটার উপরে এখানে আজকে একটা জেনারেল ওয়ার্কশপ হলো, যাতে পাবলিক একটা অ্যাওয়ারনেস করা যায় যে অ্যাসিডিটিটাকে কী করে কন্ট্রোল করবে, হাউ টু মডিফাই, হাউ টু ডিসাইড অ্যাবাউট লাইফস্টাইল, এটার উপরে। অনেক কিছু বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের ফুড হ্যাবিটসগুলো এবং সবাই তেল মশলা বেশি খায়, সেক্ষেত্রে এই হ্যাবিটটা তো তাড়াতাড়ি এত তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করা সম্ভব না। সেক্ষেত্রে কী কী প্রিকশনস নেওয়া উচিত? চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। বাড়ি থেকে আগে নিজে থেকে শুরু করা উচিত। হেভি ব্রেকফাস্ট, অল্প লাঞ্চ, টাইমে লাঞ্চ, আর রাত্রি 9টার পরে ডিনার করা উচিত না। ডিনারের পরেই সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়া উচিত না। আর তেল মশলা ভাজাভুজি যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করা উচিত। সন্ধ্যেবেলা চায়ের সাথে চা, সিঙ্গারা, হ্যানত্যান ভাজাটাকে যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করা উচিত। ফাস্ট ফুডস টু বি অ্যাভয়েড। আর জল যত বেশি, নর্মাল জল। যদি খুব বেশি অ্যাসিডিটির প্রবলেম হয় বা চেস্ট পেন হয়, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার নেই, অ্যান্টাসিডস নিতে হবে। কিন্তু দেখুন, যদি দেখুন যে বারে বারে অ্যান্টাসিডের প্রয়োজন পড়ছে বা অনেক দিন ধরে অ্যান্টাসিডের প্রয়োজন পড়ছে, তাহলে ফিজিশিয়ানস দেখিয়ে প্রপার ডায়াগনোসিস করি যে কেন আপনার প্রয়োজন পড়ছে, আপনার রোগটা কী, সেইটা দেখিয়ে তার প্রপার ট্রিটমেন্টটা করানোটা বেটার। নট যে সারা জীবন আপনি একটা অ্যান্টাসিড ওষুধ খেয়ে যাবেন, তাতে এফেক্টের থেকে সাইড এফেক্টসের পরিমাণ অনেক বেশি। কিডনি, হার্ট, লাংস সবেতেই এফেক্ট হয়। ওদের লাইফেও স্ট্রেস অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের ছোটোবেলায় ব্যাগের ওজন এত ভারী ছিল না, এদের ব্যাগের ওজন ওদের শরীরের থেকে বেশি।
যার ফুড হ্যাবিটের কোনো ঠিকঠাক নেই, সবাই ফাস্টফুডের ওপর, ম্যাগির ওপর ডিপেন্ডেন্ট, সেই জন্য সেই লাইফস্টাইলগুলো ঠিক করলে ওদের এমনি ঠিক হয়ে যাবে। আদারওয়াইজ কিছুদিন অ্যান্টাসিডস একটু দেওয়া যেতে পারে, প্লেন অ্যান্টাসিডস। যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে প্রশ্ন করলাম যে যখন বলছিলেন যে এনজাইম নেওয়ার একটা মানুষের প্রবণতা বেড়ে গেছে, কোনো সময় ডাইজিনের একটা নিয়ে নিল খাবার পরে, সেটা লিকুইড ফর্মে হোক অথবা ট্যাবলেট ফর্মে হোক, অথবা যেমন ওই যেটা বললাম নিওপেপটিন টাইপের যেটা বাচ্চাদেরও দেওয়া হয় অনেক সময়, সেটাও নিচ্ছে, অথবা অ্যারিস্টোজাইম এনজাইম যেগুলো রয়েছে সেগুলো নিচ্ছে। সেক্ষেত্রে এইটাকে আবার এনজাইমস নেওয়ার কারণ হচ্ছে হজম শক্তি বাড়ানো। কারোর যদি হজম না হয়, যাই খাচ্ছে ব্লোটিং হয়ে যাচ্ছে, পেট ফুলে যাচ্ছে, তখন সেক্ষেত্রে এনজাইম নিলে তার লাভ হবে। প্লেন যদি অ্যাসিডিটির প্রবলেম থাকে বা পেটে ব্যথার প্রবলেম থাকে, সেখানে এনজাইমস কোনো ইন্ডিকেশন নেই। আর শুধুমাত্র অ্যান্টাসিডস কেন, অ্যান্টাসিড, পেনকিলার আর অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের সারাক্ষণই বিভিন্ন কারণে খেয়েই থাকছি, সেই সমস্যাটা সেখানে। প্রত্যেকটা ওষুধের একটা কোর্স আছে, শুরু করবেন যখন, শেষ করবেন তখন। সেটা তো লোককে মানে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে তো নিতে হবে। আপনি নিজের ইচ্ছা মতো নিতে থাকলে ফলে ইটস নট ওয়ার্কিং এনিমোর, ফলে সারা জীবন বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই এনজাইমের ওপর, অ্যান্টাসিডের ওপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে এফেক্টের থেকে সাইড এফেক্ট অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, পরবর্তীকালে কোনো ওষুধ আর কাজ করছে না। ওভার দ্য কাউন্টার অনেক সময় যেটা ওমনিপ্রাজল, এসোমোপ্রাজল, এগুলো এখন অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে। এগুলোর কি কোনো গ্রেডেশন আছে, বা এগুলো বেশিক্ষণ দিলে কি এগুলো রেজিস্ট হয়ে যেতে পারে? রেজিস্ট হয়ে যায় না, এর সাইড এফেক্টসগুলো হয়ে যায়। সাইড এফেক্টস বলতে কিডনির ওপর এফেক্ট করবে, লাংসের ওপর এফেক্ট করবে। আর লং টাইম নেওয়ার একটাই কারণ, যদি আলসার থাকে তার জন্য তাকে এন্ডোস্কোপি করে ডায়াগনোসিসটা তো করতে হবে যে লং টাইম নিচ্ছি কেন। সেগুলো ছাড়া আপনি যদি যে কোনো ওষুধে যদি লং টাইম নিতে থাকেন, এফেক্টের থেকে সাইড এফেক্ট বেশি হবে। আপনি কি সারাক্ষণ খাবার খেতে থাকবেন? খাবেন না তো, টাইমে খাবেন। ওষুধেরও সেরকম, টাইমে শুরু করবেন, টাইমে বন্ধ করবেন। কন্টিনিউয়াস চলতে থাকলে গন্ডগোল, হোয়াট এভার ইট টেক। শুভদীপ ঘোষ। आसनसोल नगर निगम के कांग्रेस पार्षद एसएम मुस्तफ़ा द्वारा आज ओके रोड इलाके में एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके ज़रिए उन्होंने यहाँ के दुकानदारों को अपनी दुकानों को सड़कों तक न लाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कई दुकानदार अपनी दुकानों के ज़रिए सड़कों पर अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी असुविधा होती है। उन्होंने दुकानदारों को इस तरह से अतिक्रमण करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि आज वो इन दुकानदारों को ये बताने आए हैं कि इस तरह से अतिक्रमण करना अनुचित है, लेकिन कल जब आसनसोल नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी तो कई दुकानदारों को नुकसान हो सकता है। और यही आखिरी बार भी होगा। हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, हम आपसे अखलाकी तौर पर बोलते हैं कि आज के बाद से आप अपनी दुकानों को गली में ले जाएं। गोश्त की तमाम दुकानों से कहता हूं कि वो अपनी दुकानों को गली में ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे बिरादराने वतन हिंदू, बंगाली, क्रिश्चियन जो भी लोग आते हैं, हमारे घरों में आते हैं, आपके घर में आते हैं, वो लोग अब आने से गुरेज करते हैं कि यहाँ पर सड़ा गला हुआ कई रोज का बासी गोश्त सामने टंगा हुआ होता है। हम खाने वाले हैं गोश्त को, खुद हमें घिन आती है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपनी दुकानों को गलियों में ले जाएं, और सब्जी वाले, ठेले वाले, लॉटरी वाले जो लोग भी हैं, जो रोड को जाम करके छोटा कर दिए हैं, उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आज आखिरी बार है मेरे भाई, आप अपनी दुकानों को अपने हाथ में ले जाइए, वरना कल हम लोग आकर के आपकी दुकानों को उल्टेंगे, फिर कल कोई शिकायत मत कीजिएगा। आज हम लोगों ने आपको ये बतला दिया है, खबरदार कर दिया है। आप लोग भी महसूस करते हैं आते जाते हुए रास्ता जिस तरीके से जाम है। आप बिजनेस करिए, बिजनेस करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, मगर आप दुकान को जिस तरीके से बढ़ा करके रोड पर में ला दिए हैं, ये समझ जाइए बर्दाश्त से ही बाहर है। चूंकि आज हम लोग आपका बीच में आए हैं बताने के लिए, हम लोग आपका लड़का, आपका बेटा होकर के बताने के लिए आए हैं। अगर कल कारपोरेशन स्टेप उठाएगी, अगर कारपोरेशन कोई कदम उठाएगा, तो उसमें गेहूं के साथ जो भी पिसा जाएगा, कुछ अच्छे लोगों का भी दुकान जो सामने में आता है, जो बड़ा हुआ है, उसके साथ कार्रवाई हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इखलाकन तौर पर आप लोगों को बताने के लिए आए हैं कि आप लोग रास्ते को छोड़ करके खड़ा कर रखें, किसी किसी का गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह भी ना रखे। और जो लोग गोश्त वगैरह का दुकान रोड पर लगा कर रखे हुए, बहुत शर्म की बात है कि जिस तरीके से दिन भर आप लोग बेचते हैं। हमारे इस इलाके से बहुत सारे अफसरान जाते हैं, बहुत सारे कारपोरेशन और सरकारी जो लोग जाते हैं, उनको बहुत अजीब सा तकलीफ महसूस होता है। ये इस्लाम मजहब कभी किसी को तकलीफ देने के लिए सिखाया नहीं गया है। आपको जो दर्श दिया इस्लाम मजहब, तो पूरा मुकम्मल कानून और दर्श दिया, चलने से लेकर खाने पीने तक, बिजनेस करने तक। आप कहीं भी दुकान लगाएंगे गली में, रिस्क का मालिक अल्लाह, आपको रिस्क मिलेगा ही। तीसरा बात जो है, हम लोग देख रहे हैं हमारे और आपके नौजवान जिस तरीके से स्मैक खा रहा है, बेच भी रहा है, बहुत दर्दनाक बात है। जो बच्चा को पढ़ लिख कर करके अफसरान बनता, जो लोग जो
जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ करके आज एसडीओ हुए, असिस्टेंट एसडीओ हुए, बीडीओ हुए, आपका इलेक्ट्रिक असिस्टेंट इंजीनियर हुए, मजिस्ट्रेट हुए, हम लोग लिए फख्र की बात है कि इसी सरजमीन ओके रोड में हमारे बहुत सारे बीडीओ हैं। तो जो बच्चा को कलम पकड़ना चाहिए, आज वो स्मैक अटेंडेंट खा रहा है। ये कसूरवार उनके घर वाले भी है, हम लोग भी है, हम सब है। तो इसलिए हम लोगों ने आज ये बेड़ा उठाया है कि जो लोग स्मैक खा रहे हैं या बेच रहे हैं, उनके साथ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनका घर वालों को उनको स्टेप उठाना चाहिए, तब ये स्मैक वगैरह मंशियात डेंड्राइड वगैरह बंद होगा। छोटा जो बेवक्त बेला वजह गाड़ी वगैरह जो ढुका देते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर के शक्ल में हो या किसी किस्म का जो आप लोग मोटरसाइकिल वगैरह चाहता खड़ा रखते हैं या टोटो, इस इलाके से ओवरटेक कर करके लेकर के जाते हैं। यकीन जानिए हम लोगों को भी अगर कारपोरेशन वगैरह जाना होता है तो हम लोग बाईपास, हम लोग एनबीसी रोड से होकर के जाते हैं। तो ये सब चीजों से परहेज करिए। और जो चौथा जो मामला थे जो आप देख रहे हैं, इलाके में बहुत सारे जगह में लॉटरी बिक्री हो रहा है। बहुत शर्म की बात बताना पड़ रहा है कि लॉटरी वाला लोग ना जाने वो अपना किस्मत बदलने के लिए लॉटरी खरीदते हैं। वो लॉटरी को रखें और एक बार निकाल करके देखें महीने में आप कितना पैसा खर्च कर दिया। आप हलाल कमाई को लॉटरी में आप अपने किस्मत बदलना चाहते हैं, किस्मत बदलने के आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। लॉटरी आपको किस्मत नहीं बदल सकता है। ये सब जो बहुत तरह के जुआ हो रहे, ये तमाम जुआ को इलाके के बासिंदा, यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों पर उसका फर्ज बनता, हम तमाम लोगों के ऊपर में, चाहे वो रफायम सोसाइटी हो, चाहे वो हमारे इस इलाके के क्लब हो, चाहे वो आपका लोकल यूथ क्लब हो, सात क्लब हो, हियात क्लब हो, हिया सोसाइटी हो, तमाम लोग, चाहे वो टेम्पू स्टैंड के टेम्पू ड्राइवर लोग हो, तमाम लोगों पर जिम्मेवारी बनती है। आप भी टेम्पू को एक तरफ लगाएं, आपके वजह से भी हमारे वजह से भी जाम होता है। तमाम लोगों को इलाके का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी इलाका ठीक हो पाएगा। सबसे अच्छी बात है कि मेरे इस इलाके में 18 स्कूल है और इस दिन ब दिन पढ़ने पढ़ाने का रस्म चल रहा है। तो ये जो बच्चे पढ़ के आपका एसडीओ, मजिस्ट्रेट, डीएम बनते, वो बच्चा कहीं ना कहीं बच्चियां जाने वगैरह दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हम तमाम लोग इसका ख्याल रखेंगे। अभी हम लोग बताने के लिए आए हैं, नेक्स्ट में हम लोग जो लोग दुकान लगाए उसको समझाएंगे। तो मैं आप चाहता हूँ कि 16 तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।